Hi everyone, welcome to Towards School, and today's topic is chromosomes. So let's begin. A chromosome is a molecule of DNA that is supercoiled around protein so it can fit into the nucleus of a cell. Or we can say chromosomes are organized structure of DNA and proteins. The term chromosome is derived from a Greek word, uh, chrome, which means color, and the soma, which means body. The chromosomes are named so because they are cellular structures and they are strongly stained by some dyes used in research. Chromosomes play an important role that ensure DNA is copied and distributed accurately in the process of cell division. In most of the organisms, chromosomes are arranged in pairs in the nucleus of the cell. Next is morphology of chromosome. According to the position of centromere and their shape, chromosomes may be classified as acrocentric, submetacentric chromosome, metacentric chromosome, and telocentric chromosome. So first is acrocentric chromosome. With nearly terminal centromere, they are rod-like, having very small and very long. As you can see, the centromere is located near the terminal of the chromosome. Here it is. This is centromere, and these these are arms of the chromosome. One is large and another is small. Second is a submetacentric chromosome. Centromere divides chromosome into unequal arms resembling L shape. As you can see here, submetacentric chromosomes. Centromere divides chromosome into two unequal parts. These two arms are unequal, and upper side is small and lower side is long. Next is metacentric chromosomes. Centromere divides chromosome into two equal arms as in B shape. Both Both arms are equal in metacentric chromosome. Chromosomes are divided into two equal parts with the help of centromere. Centromere is located in the middle of the chromosome, so both arms are equal. Next is telocentric chromosome. Centromere is located at the end of the chromosome. As you can see here, this is the end of a chromosome and centromere located here. Next, let's talk about chromosome structure. They are thread-like structure located inside the nucleus of animal and plant cells. In eukaryotic cell, chromosomes are composed of a single molecule of DNA with many copies of 5 types of histones. Histones are protein molecules and are rich in lysine and arginine residues. They positively charge, hence they bind tightly to the negatively charged phosphates in the DNA sequence. So basically, histones are protein molecule having rich in lysine and arginine, and these residues are negatively charged. Sorry, these residues are positively charged, so they can bind to the negative charge of the phosphate group of a DNA sequence. Next is a small number of non-histone proteins are also present, and these are mostly transcription factors. So a small number of non-histone protein are also there, and these are known as a transcription factor. They work as a transcription factor. Next is transcription factor regulate which part of DNA to be transcribed into RNA. टाइप्स की बात करते हैं तो
There are two types of chromosome. First we have autosomes and second is sex chromosome. Autosomes are all of the chromosomes in the body except for sex chromosome are autosomes. नेक्स्ट इज आपका सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होता है. सेक्स क्रोमोसोम्स डिफर इन द फॉर्म ऑफ साइज, बिहेवियर, फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी क्रोमोसोम फ्रॉम द ऑर्डिनरी क्रोमोसोम्स. बेसिकली ये आपके जो ऑटोसोम्स होते हैं, जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं, उनसे डिफरेंट होते हैं इन साइज एंड शेप एंड बिहेवियर ऑल्सो. द सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के टाइम. ये सेक्स को डिटरमाइन करते हैं कि अगर एक्स क्रोमोसोम जाता है, बोथ एक्स क्रोमोसोम, तो आपका वो फीमेल होती हैं, एंड अगर एक्स एंड वाई जाता है तो वो मेल होते हैं. तो these sex chromosome differ between the male and female have two copies of X chromosome and the male have X and chromosome and Y chromosome. So males are hetero मतलब मेल्स के पास जो होता है वो दो अपोजिट क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे X एंड Y. तो हेट्रो होते हैं और वो होमोजाइगस होते हैं, हेट्रोजाइगस कैसे. नेक्स्ट आपका होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं. बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, लेकिन अदर भी हो सकते हैं क्रोमोसोम्स. तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं. होमोलोगस का मतलब है आर मेड अप ऑफ द क्रोमोसोम पेयर्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली द सेम लेंथ एंड सेंट्रोमियर पोजीशन, स्टेनिंग पैटर्न फॉर जीन्स विद द सेम करस्पॉन्डिंग. तो बेसिकली जो जीन लोकेशन होता है, पैटर्न ऑफ स्टेनिंग होता है, एंड क्रोमोसोम जो लेंथ होती है, साइज होती है, बेसिकली सेम होते हैं दोनों. पेयर ऑफ अ क्रोमोसोम होता है, एंड दीज क्रोमोसोम्स आर नोन एज अ होमोलोगस क्रोमोसोम. नेक्स्ट इज in one of the homologous chrome is inherited from the mother and the other from the father pattern, यानी पैटर्नल या मैटरनल क्रोमोसोम होता है. दीज क्रोमोसोम्स आर यूजली नॉट आइडेंटिकल बट दे कैरी द सेम टाइप ऑफ जीन्स. तो बेसिकली होमोलॉगस और भी होते हैं, लेकिन जो 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 एक मैटरनल से आते हैं और पैटर्नल फादर से आते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते हैं बट सेम टाइप ऑफ जीन्स कैरी करते हैं. नेक्स्ट इज़ आपका जाइंट क्रोमोसोम्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो. Giant chromosome, these are chromosomes which are extremely large compared to the normal chromosomes and occur in some animal cells. Like two types of giant chromosome are known. First is Lamprey chromosome, second is polytene chromosome. Lamprey chromosome was the name was given by the Ruckett and first seen by the Fleming in 1882. These chromosomes occur in the oocytes, germ cells in ovary of amphibians, basically salamander में, some insects में भी होते हैं. तो they are extremely large synapse homologous chromosomes. बेसिकली ये बहुत लार्ज होते हैं, ये क्रोमोसोम, जाइंट क्रोमोसोम्स बहुत लार्ज होते हैं एंड होमोलोगस होते हैं. एंड इट वॉज गिवन द नेम बिकॉज इसको अगर हम कहें तो इसको हम लैम्ब्रस क्रोमोसोम क्यों कह रहे हैं. इट वॉज गिवन दिस नेम बिकॉज इट इज़ सिमिलर इन अपीयरेंस टू द ब्रश यूज टू क्लीन लैम्प एंड चिमनीज इन द पास्ट. जो ब्रश को क्लीनिंग की जाती थी, जिस तरीके से आप देख सकते हो इस तरीके से ये लैम्ब्रस है, तो इसलिए इसको लैम्ब्रस नाम दिया गया था, लैम्ब्रस क्रोमोसोम, क्योंकि अपीयरेंस में ये सेम दिखता था जब जो चिमनी वगैरह क्लीन किया जाता था. द लैम्ब्रस क्रोमोसोम अकर एट द डिप्लोटीन स्टेज, मियोसिस प्रोफेज 1 में, इन द प्राइमरी यूसाइट ऑफ ऑल एनिमल स्पीसीज. Made up of a main chromosome axis with a lateral loop going on opposite direction vertical to it. बेसिकली यहाँ पे एक बेस होता है, एक क्रोमोसोम होता है, यहाँ से लूप्स फॉर्मेशन होती है वर्टिकल एक दूसरे से, तो इसलिए इसको लैम्ब्रस क्रोमोसोम कहते हैं. एंड जो कि लूप फॉर्म होती हैं, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड हो जाती हैं. द लूप कंसिस्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनली active DNA which can synthesize large amount of mRNA, messenger RNA, necessary for the synthesis of yolk. नेक्स्ट इज आपका पॉलीटीन क्रोमोसोम. द पॉलीटीन क्रोमोसोम दिया गया था बाय ईजी बेल्बेनी एंड दीज आर द जाइंट क्रोमोसोम, अ टाइप ऑफ अ जाइंट क्रोमोसोम फाउंड इन द सेलेवरी ग्लैंड्स ऑफ द फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला. ड्रोसोफिला में पाया जाता है, एंड ड्रोसोफिला करेक्ट, यस, इंक्लूड एल हियर. ओके,
they are many types larger than the normal chromosomes but smaller than the Lamprey chromosome. इनकी जो साइज होती है वो थोड़ी स्मॉल होती है Lamprey के कंपैरिजन में. And the polytene chromosomes appear to contain 5 long one short arms होते हैं radiating from a central point called chromocentre. ये दिखने में इनमें 5 आर्म्स होते हैं, एक छोटा आर्म्स भी होता है, स्मॉल आर्म भी होता है, एक सेंट्रल पॉइंट से बेसिकली. लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें बेसिकली 8 आर्म्स होते हैं, 8 क्रोमोजोम आपस में फ्यूज़ होते हैं. इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ऑल ऑफ द 8 क्रोमोजोम फाउंड इन द सेल. 8 क्रोमोजोम से के फ्यूजन से ये बनते हैं. लेकिन अपीयरेंस की बात करें तो इसमें 5 आर्म दिखते हैं और एट जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड 6 वन इज़ आपका स्मॉल आर्म्स. तो इस तरीके से अपीयरेंस में दिखता है. लेकिन ये 8 क्रोमोसोम्स आपस में फ्यूज़ होते हैं, जो सेंट्रोमियर है आपस में फ्यूज़ होके. तो यहाँ से जो ये सेंट्रल है इसको हम क्रोमोसेंटर कहते हैं. यहाँ से ये रेडिएट होते हैं, इस तरीके से अपीयरेंस में लगते हैं. नेक्स्ट इसका दे बिगिन्स इन द नॉर्मल क्रोमोसोम्स. ये एज अ नॉर्मल क्रोमोसोम की तरह डेवलप होते हैं बट थ्रू रिपीटेड राउंड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट एनी सेल डिवीजन और एंडो रिप्लिकेशन की वजह से दे बिकम लार्ज बैंडेड ऑफ क्रोमोसोम्स, इसलिए आपस में फ्यूज हो जाते हैं. फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम इज इंपॉर्टेंट. क्या क्या फंक्शन होता है क्रोमोसोम का? क्रोमोसोम कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल दैट इज रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू डेवलप एंड ग्रो. तो जेनेटिक कोड स्टोरेज का काम करते हैं. सेक्स डिटर्मिनेशन में भी हेल्प करते हैं. कंट्रोल द सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करते हैं. क्रोमोसोम्स चेक सक्सेसफुल डिवीजन ऑफ सेल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड स्टोरेज. एंड प्रोटीन का स्टोरेज करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं. द क्रोमोसोम्स डायरेक्ट द सीक्वेंसेस ऑफ प्रोटीन्स फॉर्म्ड इन आवर बॉडी एंड ऑल्सो मेंटेन्स द ऑर्डर ऑफ डीएनए. तो बेसिकली ओवरऑल ये क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड टाइप्स के बारे में था. आई होप आपको वीडियो पसंद आए होगी. तो वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.